those who will join late, they will join later. Okay. 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 Are you able to see my screen? Yes. Yeah, guys, we're just interactive. ये कोई क्लास नहीं, बिल्कुल किसी को बोलना नहीं, ऐसा नहीं. Just be interactive, okay? Whatever you feel. वैसे भी we are not able to see each other face, okay? So you can talk whatever you are feeling and be interactive so that you will get the interest and your concept will be clear. Okay. So first of all, I'm Rohini and I welcome you to the AWS DevOps course. So this course is basically for the AWS cloud and the DevOps tools. Okay, the together we are covering as a AWS DevOps course. And okay, just let me know, all of you are comfortable with the English, or the mix should be there, English or Hindi? No, it's okay. English is okay. And like, I mean, it will be mixed. Okay. it is okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. So, as I told you, my name is Rohini, and what makes me eligible to teach you about this course? So, I'm AWS certified, Terraform certified, and I'm working right now in the IT industry. Also, I have published some research papers and I have conducted some trainings in the corporate sector in the AWS itself. Whatever the new concepts are there in the DevOps field, also, I have conducted some workshops in corporate field. So I think that makes me eligible to teach you this. Now, this is just one general scenario what we are going to cover. So I mean, ये क्या कवर करता है, ये जो कोर्स में है, जो आपको पूरा, अगर if you are joining this course, what will be the different things which are not in the market right now? First of all, we will prepare you for the market. ठीक है. प्लस सिंपल हमारा सिनेरियो होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी है वो चीज़ें देख के वी हैव प्लान्ड अवर कोर्स. ठीक है. अगर किसी AWS या DevOps का अगर हमें कुछ वैकेंसी देखी जाए तो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन होता है. ठीक है. वो देख के हमने हमारा कोर्स प्लान किया है. So basically we will focus on to prepare you for the market. After completing this course, you will be confident to face the interviews and to get the jobs. Okay. The second thing, which will be the most important, the QA section will be there. Whatever we will teach, on that you can ask the questions and you will be satisfied with the answers by the me, by your members, whatever. Okay. And as I told you, this will be the mainly interview based preparation. We will focus you on the main things to crack the interviews. According to that, we will cover the curriculum as well as the real time scenarios will be given to you. As I'm working in the corporate, what are the interview questions asked, that will be given to you, that will be to tell you time to time. Okay. You have to just go through it, you have to prepare it, and once you cover this syllabus is done, you will be able to give the interviews. Then also I will give you some practical scenarios, like if I'm covering any service of the AWS, on that I will give you some practice scenario, like practice session will be more than the theory, because hands-on experience is more important than the theory. And yeah, थेरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इंटरव्यूज में थेरी ही पूछी जाती है. आपको कुछ भी कहो, आपको थेरी में आंसर्स देने दिए जाते हैं. एक या दो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, लाइक स्क्रिप्टिंग या वगैरह. ठीक है. बट अदरवाइज दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम. सो थेरी भी आपकी अच्छे से होनी चाहिए एंड हैंड्स ऑन अगर प्रैक्टिस है आपकी, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा दैट आई हैव डन दिस एंड यू विल बी एबल टू फेस द इंटरव्यूज वेरी वेल. नाउ, what is our strategy, which will, according to you, I mean, you will just follow that and you will be able to face the interview. What we will do, we will make you some group of the students. So that group will be, you can connect to 24 hours. ठीक है. आप आपके प्रैक्टिस करोगे, आप आपके जो भी डाउट्स है, आप अमॉन्ग योर सेल्फ यू विल डिस्कस इट, और आपसे नहीं सॉर्ट आउट हो रहे तो यू कैन रीच टू अस. ठीक है. वो वहाँ पे सॉर्ट आउट होगी. इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत डिटेल में होती है. जब आपके स्टूडेंट जो होते हैं, आपका एक ग्रुप रहता है, एक कंपटीशन रहती है,
बहुत नए नए टॉपिक्स आप सीखते हो, एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपसे नहीं हो रहा है तो वी आर देयर टू सॉर्ट इट. सो दैट विल बी वन ग्रुप which will be you are just 24 hours available for you, and otherwise we are also there. That will be one also community group which will be connected for all of us. Then session will be conducted on the Saturday Sunday for 2 hours. और अगर लगता है कि सिलेबस थोड़ा पीछे पड़ रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, सो इन बिटवीन by consulting the students we will arrange some more section in the weekdays also. ठीक है, जैसी प्रिपरेशन है. और हमारे कुछ जैसे अल्टरनेट 2 वीक्स हमारे मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, स्टार्टिंग से ही अल्टरनेट वीक पे आपके मॉक इंटरव्यूज रहेंगे. एंड फॉर श्योर जो आपको पढ़ाई कर रहा है, सेशंस अटेंड कर रहा है और मॉक इंटरव्यूज फेस कर रहा है, आपको क्या आ रहा है, कैसे बता रहे हो, वो आप इंटरव्यूज फेस करने के बाद ही आपको पता चलेगा. ठीक है, आई अश्योर यू, जो भी ये पूरी चीजें करेगा, आफ्टर 4 months यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज. Okay, so this will be pattern which we will follow. We will form a group of the students. There will be the discussions among you जो हमने पढ़ाया है. आपको प्रैक्टिकल सेशंस दिए जाएंगे. थ्योरी कंप्लीट करने के बाद वो आपको जो भी इश्यूज है आपको ग्रुप में डालने हैं. आपको मुझसे कनेक्ट होना है, हम तो आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे. एंड आफ्टर दैट क्यूए जो भी है आप कभी भी पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज द फील्ड. यहाँ पे एरर्स आप जैसे ही हैंड्स ऑन करेंगे आपको इश्यूज आने वाले, तो आपको वही देखना है. ठीक है, आपको डिस्कस करना है और वही पूछा जाता है. दैट इज द थिंग. आप कुछ कर रहे हो प्रैक्टिस, मतलब आपको इश्यूज आएंगे और आपको इंटरव्यूज में वही पूछा जाता है एग्जैक्टली कि विच इशू यू हैव फेस्ड टिल नाउ. जिसने किया है उसे वो आंसर्स देना आता है. देन मॉक इंटरव्यूज आप अल्टरनेट वीक्स पे रहेंगे. लाइक 15 days के बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा, मॉक इंटरव्यू. ठीक है, एक्सटर्नल पैनल आएगा और आपको मॉक इंटरव्यूज फेस करने हैं. मतलब अगर आप अटेंड करते हो तो आपका डर आधा चला जाएगा, क्योंकि आप इंटरव्यूज फेस कर रहे हो, तो 4 months तक तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे. इन बिटवीन हम कोई कम्युनिकेशन स्किल का भी सेशन लेंगे, नौकरी का भी एक सेशन लेंगे, जैसे आपको पता चलेगा कि नौकरी पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे ढूंढना है, प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है. कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एक हाथ सेशन लेंगे, और वो भी उसका टाइमिंग हम ये सेशन से अलग होगा. ठीक है, और वो स्टूडेंट से आपको कंसल्ट करने के बाद ही टाइमिंग आपको पता चलेगा. नेक्स्ट, सो if someone asks me what is the prerequisites for this course, so there is no any specific requisites for this AWS DevOps training course. आपको कुछ भी ऐसा नहीं है. सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप थर्ड ईयर में भी हो, आपको कुछ सेकेंड ईयर में आपको कुछ चाहिए, या फिर आप जॉब कर रहे हो, कोई भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. क्योंकि ये पूरा होने के बाद आप लोग AWS और DevOps will आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एंड द ह्यूज मार्केट विल बी ओपन फॉर यू. सो एज ऑफ देयर इज नो एनी प्रीरिक्विजिट्स कि आपको ये सर्टिफिकेशन चाहिए, ये कोर्स कंप्लीट चाहिए, नथिंग. ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम कौन सा क्लाउड यूज करने वाले हैं, AWS. ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट बताने वाली हूँ, बट जस्ट ऑफ एज ऑफ नाउ कि हम इतना ध्यान में रखो कि हम AWS क्लाउड सीखने वाले हैं. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन कि हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, वेयर वी विल डू द प्रैक्टिस. ठीक है, AWS क्लाउड ऐसा है, वो एक फ्री टायर सिलेक्शन देता है हमें. मतलब क्या, कि आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना है. ठीक है, एक अकाउंट बनाना है, एक कार्ड लगेगा सिर्फ, उसमें सिर्फ डिटेल्स डालनी है, यू विल क्रिएट योर अकाउंट और यू आर गुड टू गो फॉर द AWS क्लाउड. वो 12 मंथ्स तक फ्री होता है, और बहुत सारी बेसिक सर्विसेज जो हमें रिक्वायर्ड है, इट इज द फ्री टायर. ठीक है, मतलब उसके लिए आपके कोई चार्जेस नहीं लगते. आप एक्सेसिवली कुछ यूज करते हो जो पेड सर्विस है, सिर्फ उसके लिए आपको पेड करना होता है, पर उसकी हमें जरूरत ही नहीं है. जो सर्विसेज हम लर्न करने वाले हैं हमारे लिए, दोज आर द फ्री, एंड वी विल डू द प्रैक्टिस ऑन द AWS क्लाउड. ठीक है, आपको अकाउंट बनाना है जस्ट सिंपली, और आपका रिसोर्सेज बनाना हो गया, प्रैक्टिस करके हो गया, उसे डिलीट कर देना है, दैट्स इट. आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. और इन केस, इसके आगे भी जाके बता रही हूँ, इन केस आपसे कुछ क्लिक हो गया, कुछ पेएबल अमाउंट आ गया है, सो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज द वे टू वे ऑफ इट. ठीक है, देयर इज नो एनी इशू. नाउ दिस इज इन दिस सिलेबस व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. ये सिर्फ एक चीजें है. इन डिटेल सिलेबस आई विल जस्ट टेल यू आफ्टर this session. I mean,
एट द एंड ऑफ द सेशन, बट जस्ट एक ब्रॉडली आपको बता रही हूँ कि कौन से मॉड्यूल्स रहेंगे। सो इन आईटी इंडस्ट्री क्या होता है, कोई भी काम जो चलता है वो एक मॉडल फॉलो किया जाता है, एक मेथोडोलॉजी होती है। सो इट इज नथिंग बट द अजाइल मेथोडोलॉजी एंड वाटरफॉल। ठीक है, पहले जो हम यूज करते थे दैट वाज द वाटरफॉल। सो वी विल सी इन द डिटेल व्हाट इज द अजाइल एंड waterfall methodology. So if you are doing the AWS DevOps course, indirectly you are entering into the IT industry. ठीक है, आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो तो आपको वहां पे काम कैसे चलता है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री में कौन से मेथोडोलॉजी या फिर कुछ भी काम कैसे फॉलो होता है। सो दैट इज नथिंग बट द मॉडल फर्स्ट, अजाइल मेथोडोलॉजी और वाटरफॉल। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सिलेबस में कवर किया है। ठीक है, मतलब हम पूरा स्क्रैच से ले रहे हैं कि आप आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हो जिसको कुछ भी पता नहीं है या फिर कुछ और डोमेन है, ही शुड नो और शी शुड नो कि हम कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल जो रहेगा कुछ नेटवर्किंग के कंसेप्ट है। ठीक है, AWS क्लाउड इट इज नथिंग बट एक नेटवर्किंग का कंसेप्ट उसमें आते हैं, इस पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए नेटवर्किंग की, सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इनटू द मॉड्यूल 2। थर्ड मॉड्यूल इट इज द लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लिनक्स की कुछ कमांड्स है जो एक डेवऑप्स इंजीनियर या AWS इंजीनियर को पता होनी चाहिए। सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इनटू द थर्ड मॉड्यूल। ठीक है, मतलब पूरी नहीं, अगर आप लिनक्स देखोगे एक एडमिनिस्ट्रेटर आप देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सिलेबस, क्योंकि वो ओएस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट हमें उतनी की जरूरत नहीं है। जो हमें पता होनी चाहिए उतनी हम देखने वाले हैं। ठीक है, देन द फोर्थ मॉड्यूल इट विल बी आईटी इंडस्ट्री में पहले काम के या फिर क्लाउड जब नहीं था तब काम कैसे होता था और अभी काम कैसे हो रहा है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्लाउड तो पढ़ रहे हैं, क्लाउड होने के बाद ऐसा क्या फर्क हुआ, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इट विल बी कवर्ड इनटू द फोर्थ मॉड्यूल। नाउ फ्रॉम द फिफ्थ मॉड्यूल वी आर गोइंग टू सी द सर्विसेज ऑफ द AWS क्लाउड। सर्विसेज क्या होता है, AWS क्लाउड के ऊपर जो भी सर्विसेज मैनेज सर्विसेज AWS क्लाउड देता है दैट इज नथिंग बट इट्स सर्विसेज, लाइक स्टोरेज सर्विस हो गई, एक नेटवर्किंग हो गया। सो दोज आर द ऑल सर्विसेज। इफ आई एम गोइंग टू कैटेगराइज इट, वो 200 प्लस सर्विसेज है, तो हमें उतनी पूरी देखने की जरूरत नहीं है। हमें एज ए AWS DevOps इंजीनियर जो भी सर्विसेज पढ़नी है दैट इज द मेन टास्क इनटू द AWS। ठीक है, AWS DevOps में से AWS में we are going to see the services which are needed for the AWS engineer. So those are EC2, storage services, VPC, load balancer, auto scaling, Route 53, monitoring and messaging tools. ठीक है, ये AWS के अंडर आती है। अभी जिनको कुछ पता है थोड़ा बहुत उन्हें कुछ पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग, दीज आर द सर्विसेज। और जिन्हें कुछ नहीं पता है डोंट बी अफ्रेड, ये सिर्फ एक सर्विसेज है जो हमें वन बाय वन देखनी है कि AWS कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विच इज नीडेड फॉर अवर डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट डेवऑप्स का कंसेप्ट आएगा, व्हाट इज द डेवऑप्स। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी। देन Git is also an important version control system। जो भी कोड डेवलप किया जाता है आइदर बाय द AWS DevOps इंजीनियर या फिर किसी डेवलपर से, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो कैसे काम करते हैं, इट इज स्टोर्ड इनटू द गिट। ठीक है, गिट एंड गिट हब ये कंसेप्ट हम देखेंगे, उसकी कुछ कमांड्स होंगी। देन जेनकिंस से एक टूल है जिससे हम CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं। ठीक है, इट इज अ CI/CD टूल, ये हमें देखना है बिकॉज दिस इज वी कैन से इट इज अ हार्ट ऑफ DevOps। ठीक है, ये हमें देखना है ये कंसेप्ट। देन डॉकर कंटेनराइजेशन टूल है, ये सब टूल्स है। ठीक है, वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट दीज आर द टूल्स, जेनकिंस, डॉकर, एंसिबल एंड टेराफॉर्म। हम टेराफॉर्म भी देखने वाले हैं। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे नौकरी पे जाके तो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर पूछी जाए तो टेराफॉर्म और कुबरनेटिस है। ठीक है, कुबरनेटिस ये बहुत ज्यादा अभी लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी है, जो किसी को अभी अप्लाई करना है तो उसे कुबरनेटिस पता ही होना चाहिए। ठीक है, एंड टेराफॉर्म
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है। तो हम वो भी देखने वाले हैं कि टेराफॉर्म और कुबरनेटिस। एंड इन द लास्ट वी विल डू some projects, the real time projects, so that you can add it in your resume. So this is just in general in the broad spectrum the syllabus which we are going to cover. इसका डिटेल में भी मैं आपको at the end of the session दिखाऊंगी, ठीक है। ओके फाइन। टिल दैट अभी तक किसी को कुछ इश्यूज है, कुछ पूछना है? हम आगे जाएंगे, बट स्टिल नाउ इज देयर एनी डाउट? हेलो हेलो। किसी को कुछ डाउट है? नो। No. ओके नहीं, लाइक कुछ लैंग्वेज स्पीड में कुछ कम ज्यादा करना है? गाइस जस्ट बी फ्रैंक, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, हम एक दूसरे को नहीं दिख रहे। सो बी फ्रैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रहा है, कुछ लैंग्वेज चेंज करनी है, वॉट एवर इट इज, बी फ्रैंक, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। सो No, कैन वी it's fine प्रोसीड? for my side. Yes, yes. ओके श्योर। सो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। सो व्हाट इज द क्लाउड एग्जैक्टली, ठीक है। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं क्लाउड क्लाउड क्लाउड। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द क्लाउड? आपको क्या लगता है कि क्लाउड मतलब क्या है? एनीवन? Sachin, can you just tell me what is the cloud according to you? Cloud is a remote servers. Correct. Good. Anyone? Exactly. Kunj, Nitin, Tahir, anyone? कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, किसी का बैकग्राउंड है जिसको क्लाउड पता है या फिर काम कर रहे हो उस पे? अब टेलीकॉम से हो सभी लोग? Yes. Yes. ओके ओके। Yeah, almost Yes, all yes. are telecom engineers. They are trying to reply. Guys, make interactive the session. If you know, you can speak up. सी गाइस, Otherwise, इफ अगर आप बोलोगे नहीं ना, द थिंग इज आप इंटरव्यूज में भी बात नहीं कर पाओगे। सिंपल है, आपको जो भी दिमाग में आता है बोलने की कोशिश किया करो। आइदर आप यहाँ पे क्लास कंटिन्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट द थिंग ऑलवेज रिमेम्बर, जब तक आप बात एक्सप्रेस नहीं करोगे आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होने वाला है। आइदर यू गो टू द टेलीकॉम सेक्टर, इन द आईटी सेक्टर, बात करने की कोशिश किया करो। सिंपल है, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होने वाला है। आपके दिमाग में कुछ भी चलो, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा याद में रखो, इफ वी आर गोइंग टू एनी कंपनी और एनी सेक्टर, आपके थॉट्स एक्सप्रेस करते आने चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, दैट इज नॉट एन इशू, बिल्कुल भी नहीं है इशू, ठीक है। हिंदी में करो बट एक्सप्लेन करो, बात करने की कोशिश किया करो। इट इज अ बेनिफिशियल पॉइंट, प्लस पॉइंट है, सिंपल है, ठीक है। हिंदी में भी आ गया, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश करके आ जाएगा, बट एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आई विल टेल यू सिंपली, क्लाउड क्या होता है। जैसे हम बाकी चीजें होती है, मतलब अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करें, एक फेसबुक जो है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, सिंपल। हाँ, अभी आप फेसबुक तो सबने यूज किया है, करेक्ट। आईटी में क्या होता है, क्लाइंट कौन होता है पता है आपको? कोई भी क्लाइंट या फिर कोई भी कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक एप्लीकेशन डेवलप करके लेना है। एप्लीकेशन सिंपल, फेसबुक इट इज एन एप्लीकेशन, ठीक है। जीमेल इट इज एन एप्लीकेशन।
आप Amazon यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, इट इज वन एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक आपका वेब बेस्ड मतलब जो हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं, एंड द सेकेंड वन जो हमारे मोबाइल पे होते हैं, जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज करते हैं, करेक्ट। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो आप उसमें से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, दैट इज द मोबाइल बेस्ड, वो एक एप्लीकेशन हो गया। एवरीवन एग्री, करेक्ट। द सेम थिंग अगर आप ब्राउजर पे यूज कर रहे हो तो वो दैट इज द वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो कोई भी क्लाइंट आईटी इंडस्ट्री में वो होता है जिसको एक एप्लीकेशन डेवलप करके लेना है। वो कोई भी हो सकता है, कोई स्कूल है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो आपका क्लाइंट हो गया कि जिसको एक एप्लीकेशन डेवलप करके लेना है। सो आई एम द क्लाइंट से ज़ुकेनबर्ग, और आपकी कंपनी है, ठीक है। मैं आपके पास आ गई सपोज एटीएस के पास, एंड माय रिक्वायरमेंट इज दैट कि मुझे एक एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए, सोशल एप्लीकेशन, जहाँ पे एक लॉगिन पेज होगा। इट इज जस्ट इमेजिनरी थिंग होती है, ठीक है। एक उनके दिमाग में कंसेप्ट होता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। सो ये जो रिक्वायरमेंट्स है, इट इज गेट डिलीवर्ड टू द कंपनी विच विल डेवलप द एप्लीकेशन। मतलब हमारी एटीएस, सपोज एटीएस जो है वो मेरे लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करके देने वाली, और मैंने रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे दिखने में ऐसा चाहिए जहाँ पे एक यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड होगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद वहां पे फ्रेंड्स की लिस्ट दिखनी चाहिए, और वो उस यूजर के लिए एक वॉल होनी चाहिए। ये ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने मेरे कंसेप्ट बताई, मेरी रिक्वायरमेंट्स मैंने एटीएस को बता दी, ठीक है। नाउ अभी मेरे रिक्वायरमेंट्स तो उनके पास डिलीवर्ड हो गई, ठीक है। वो अंदर काम कैसे चलता है दैट आई विल शो यू लेटर ऑन, बट सिंपली अभी मेरी रिक्वायरमेंट से सेटल हो गई। तो अभी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं जो वहां पे एक मीटिंग अरेंज करते हैं, और जो क्लाइंट के पास के रिक्वायरमेंट्स है उसे नोट डाउन करके एक विजुअल्स बनाया जाता है, ठीक है। फिर वो क्लैरिफाई किया जाता है क्लाइंट से कि ठीक है, ये हमने आपने जो रिक्वायरमेंट दी थी उसके हिसाब से हमने इसे बनाया है। सो ही विल जस्ट क्लैरिफाई, हाँ हाँ दैट इज ओके, कि मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए, यहाँ पे यूजर नेम चाहिए, मुझे पासवर्ड चाहिए, इट इज परफेक्ट। ठीक है, रिक्वायरमेंट मेरी डन हो गई, इट इज डन, ठीक है, फ्रॉम द क्लाइंट। नाउ अभी ये जो आपको दिख रहा है फेसबुक का फ्रंट पेज, या फिर लॉगिन करने के बाद फ्रेंड लिस्ट दिखती है, और आपकी एक वॉल होती है जहाँ पे आप पेस्ट करते हो, यहाँ पे सेटिंग्स होती है। whatever you see by your eyes, that is nothing but the front end, ठीक है। ये जो होता है फर्स्ट लेयर, दिस इज द फ्रंट एंड। तो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर। आप सुनते होंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर्स, ठीक है। whatever visuals we take, it is nothing but the front end developers. I just hope कि अभी आपको एक लेयर पता चल गई है। एप्लीकेशन अगर कोई डेवलप करना है आईटी इंडस्ट्री में, मतलब मेरी कंपनी है एटीएस, ठीक है। मेरी कंपनी के पास एक क्लाइंट आ गया कि जिसको एक सोशल एप्लीकेशन डेवलप करना था, उसने मेरे पास रिक्वायरमेंट दी, एंड ही जस्ट गिव सम जो भी उसने इमेजिन किया था, एंड बाय यूजिंग यूएक्स डिजाइनर्स, बिजनेस एनालिस्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, हमने बैठ के एक पेज बनाया, बस एक विजुअल्स उनको दिखा दिया, ठीक है, कि इज इट ओके, ये आपको चाहिए था। ही सेड ओके। सो नाउ ये डिजाइन करना शुरू हो जाएगा। सो इट इज नथिंग बट द फ्रंट एंड। सो आपको अब कोई पूछता है कि फ्रंट एंड क्या होता है किसी एप्लीकेशन का, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन का, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, या फिर जीमेल, गूगल, जो भी है, आपको जो दिखता है बाय योर आईज, इट इज नथिंग बट द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स अलग होते हैं, डेटाबेस डेवलपर्स अलग होते हैं, एंड वी आर द डेवऑप्स। डेवऑप्स इन सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द फ्रंट एंड। एवरीवन क्लियर व्हाट इज द फ्रंट एंड? Yes. Yes, yes. ओके, Yes, clear. गॉट इट, थैंक यू। नाउ बैकएंड क्या होता है? एग्जैक्टली लॉजिक, ठीक है। एपीआईज होते हैं, इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ दिख रहा है, पर ऑपरेट कैसे होगा अंदर से, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, करेक्ट। कि मैंने यूजर नेम पे अगर मैंने क्लिक किया तो उसके पीछे एक एपीआई हिट होता है, तो एपीआई डेवलप करना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट द बैकएंड डेवलपर्स, ठीक है।
So this is the second layer, it is the backend developers. And the third one, अभी जैसे मेरी कुछ इमेजेस आप फेसबुक पे अपलोड करते हो, राइट? आप सभी लोग फेसबुक पे इमेजेस अपलोड करते हो या फिर कुछ पोस्ट रहती है, आप सेव करके रखते हो आपके पोस्ट पे, तो कहाँ जाता है? कहीं तो स्टोर होता है ना, क्योंकि आपको देखो 3 years ago 4 years ago की मेमोरीज वहां पे डिस्प्ले की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, करेक्ट? सो दैट इज द थर्ड लेयर, दैट इज नथिंग बट द database layer. So in this way, if someone asks you what is an application, so it is a 3-tier architecture: front end, back end and database. इन तीनों लेयर्स के सिवा और कुछ नहीं होता है किसी भी एप्लीकेशन में. जब ये तीनों साइमल्टेनियसली सिंक्रोनसली वर्क करते हैं, इट गिव्स राइज टू वन बेस्ट एप्लीकेशन. ठीक है? सो हमारा रोल कहाँ पे आता है? सिंपल सवाल है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एज ए AWS DevOps engineer, because we are involved in every tier, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस. हम तीनों को कंबाइन करके रखते हैं, इन तीनों के डेवलपमेंट्स. अभी इन्होंने इसके लिए कोड लिख दिया, ठीक है? फ्रंट एंड का कोड लिखा गया HTML में, बैक एंड का सपोज Node.js का था. कोई भी टेक्नोलॉजी ये सिलेक्ट की जाती है कि अभी लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ सेटिस्फाई हो रही है. ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है वो डिसीजंस लेते हैं और फिर डेवलपर्स के पास ये कोड लिखने के लिए जाता है. तो डेवलपर्स फ्रंट एंड का कोड लिख दिया, बैक एंड वालों ने बैक एंड का लिख दिया, डेटाबेस रेडी है हमारा. तो ये तीनों जो है, इसे कहीं तो भी ये जो कोड है मुझे कहीं पे तो भी रखना पड़ता है. इन सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू कि कोड तो लिख दिया, जो हम कोडिंग कोडिंग बोलते हैं ना हमेशा आईटी में, इन तीनों ने अपना अपना काम कर दिया, कोड लिख दिया. अभी ये कोड मेरे लोकल पे तो मतलब मेरे लैपटॉप पे रख के तो मतलब नहीं है, मुझे कहीं तो भी उसे रखना पड़ता है, होस्ट करना पड़ता है. आई एम सेइंग होस्ट, अगर मतलब टेक्निकली टर्म बोला जाए, आई हैव टू होस्ट दिस कोड समवेयर. और जहाँ पे हम होस्ट करते हैं, इट इज नथिंग बट द सर्वर. ठीक है? उसे सर्वर कहा जाता है. अभी वो जो सर्वर है उसके 2 टाइप्स है, वहां पे हमारा रोल आता है. आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर सर्वर नहीं है तो इन कोड का कुछ मतलब नहीं है. ठीक है? आप कितना भी अच्छा कोड लिखो, फ्रंट एंड लिखो, बैक एंड लिखो, आपका डेटाबेस भी रेडी है, बट अगर आप कहीं पे होस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन आप कैसे आएगा? उसके लिए आपको लगता है सर्वर. ठीक है? एक सर्वर लगता है, जो आपने किसी ने आंसर दिया था अभी जस्ट कि इट इज नथिंग बट द सर्वर. एग्जैक्टली ये सर्वर का यूज होता है. अच्छा ठीक है, आप सबने लैपटॉप यूज किया है या फिर पीसी यूज तो किया है फॉर श्योर, किसी भी काम के लिए. ठीक है? अगर इस लैपटॉप की या फिर उस डेस्कटॉप की मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दूं, मतलब क्या, उसके हार्ड डिस्क एक टिपिकल होता है सर्वर बनाने के लिए, हाई कॉन्फ़िगरेशंस लगते हैं, रैम ज्यादा लगती है, रोम ज्यादा लगती है, टिपिकल एप्लीकेशंस उसका वो होता है. वो अगर ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का मैं वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप खरीद लूं जिसके ये चीजें सेटिस्फाइड होती है, मतलब क्या, सिंपल लैपटॉप ही है बस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, तो वो हो गया सर्वर. क्योंकि सर्वर कभी बंद नहीं पड़ता है, उसे हमेशा हमें शुरू रखना पड़ता है. ठीक है? इट विल बी ऑपरेटेड एट 24 आवर्स. क्या होगा अगर बंद कर दिया तो? आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा. इसलिए सर्वर की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है. ठीक है? उससे हीट हमेशा जनरेट होती है, उसे हीट कूल डाउन करने के लिए उसे एसी में रखा जाता है. ये सब चीजें होती है सर्वर में. क्लाउड जब नहीं था, फिजिकली सर्वर ऐसे ही होते थे, एक पूरा सिस्टम खरीद लिया जाता था, उसे एक प्रॉपर एक जगह पे एक रूम बनाया जाता था जहाँ पे पावरफुल एसीज लगाई जाती थी, और उसमें हमारा ये कोड है, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस का कोड इस सर्वर में डाला जाता था और ये 24 आवर शुरू रहता था. आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हमारा 10th का रिजल्ट आता था, तो हमें तो इतना पता नहीं चलता था, बट एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉग इन करते थे रिजल्ट देखने के लिए. ठीक है? तो दैट इज नथिंग बट द सर्वर. वो एक सर्वर था, कहीं पे तभी होस्ट करते थे. इतने सारे लोगों का वो लोड नहीं बियर कर सकता था और वो डाउन हो जाता था. ठीक है?
कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाता था, फिर से उस पर कुछ काम करो, क्या क्या डाउन हुआ है, क्रैश हुआ है, फिर से सॉफ्टवेयर बैकएंड डाउन हो गया क्या, उसे फिर से अप करो, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से वो वेबसाइट अप हो जाती थी। सो दैट इज नथिंग बट द सर्वर। ठीक है, अभी हमारा रोल क्या है, मैंने आपको तो बता दिया, फ्रंट एंड बता दिया, बैक एंड बता दिया, डेटा टाइप्स बता दिया। अगर आपको कोई पूछता भी है तो नाउ यू नो द 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ एन एप्लीकेशन। आपको सर्वर भी पता है कि आपने ये सब कोड कहीं पे तो भी होस्ट कर दिया। नाउ होस्ट करने के बाद अगर क्लाउड नहीं था और था, ये दोनों चीजें जब थी तो क्या डिफरेंस होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये एक फिजिकल था, फिजिकल सर्वर था, मतलब जैसे आपका डेस्कटॉप था वैसे मुझे खरीद लेना पड़ता था और वो मुझे रखना पड़ता था, उसके लिए एक जगह लो, प्रॉपर उसको सिक्योरिटी, तो ये सब चीजें करनी पड़ती थी। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्लाउड, क्लाउड आने के बाद कौन सी चीजें चेंज हुई। अब मुझे ये सब फिजिकली कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली AWS की एक सर्विस लूंगी दैट इज कॉल्ड एज EC2। ठीक है, उस सर्विस का नाम है EC2। ये एक सर्विस में AWS से लूंगी, उनको सिर्फ बोलूंगी क्लिक कर दूंगी, 4 बटन्स में क्लिक कर दूंगी और विद इन 2 मिनट्स मेरा सर्वर अप हो जाएगा। सो दैट मेक्स द डिफरेंस ऑफ क्लाउड। ठीक है, हम वो आगे देखते हैं, बट मुझे आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताना था कि एप्लीकेशन मतलब या फिर IT इंडस्ट्री में क्लाइंट क्या होता है, वो एग्जैक्टली करते क्या है, एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर आप नौकरी पे देखोगे तो आप देखो फुल स्टैक, एक फुल स्टैक कंसेप्ट होता है। फुल स्टैक मतलब जो फ्रंट एंड भी कर सकता है, बैक एंड भी कर सकता है, डेटाबेस भी कर सकता है, और जिसको थोड़ा बहुत डेवऑप्स भी आता है, थोड़ा बहुत, वो ज्यादा एक्सपेक्ट ही कर सकते, दैट इज नथिंग बट द फुल स्टैक। ठीक है, अभी ये आपको टर्म्स एटलीस्ट पता है कि आप IT इंडस्ट्री में सपोज काम करने आ रहे हो तो आपको पता है कि एप्लीकेशन डेवलप कैसे होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। नाउ अभी हम ये देखते हैं। ठीक है, क्लाउड कंसेप्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वर जो थे फिजिकल सर्वर्स थे, ठीक है, फिजिकल सर्वर्स एंड द वर्चुअल सर्वर्स। वर्चुअल मतलब क्या, जो आपको फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, वो कहीं तो भी पर है, दैट इज द वर्चुअल सर्वर्स। AWS मतलब वर्चुअल सर्वर्स। ठीक है, सिंपल। ठीक है, सो व्हाट इज द सर्वर्स, नॉर्मल कंप्यूटर्स और द डिवाइस who host the website can be considered the server including data sensors and offices। जो मैंने आपको बताया, अभी आपको सर्वर भी पता है। ठीक है, इसमें इशू क्या था, क्या जरूरत थी AWS क्लाउड की, चल तो रहा था ठीक से। इसमें इश्यूज देखो क्या क्या थे, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो जब आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, वास्ट डिफरेंस है, वास्ट। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सिंपल है, आप लैपटॉप खरीदने जाओ कम से कम 30,000 का एक ठीक ठाक सा कंप्यूटर आ जाता है, करेक्ट। बट मैं वही आपको बोलूं कि वही सर्विस अगर मैं AWS की यूज कर रही हूँ तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। कैन यू बिलीव दिस। सो ये है क्लाउड, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जैसे चाहिए आप क्लाउड पे कर सकते हो। सो पहली चीज, कॉस्ट ऑफ द फिजिकल एसेट्स। मुझे कोई भी फिजिकल एसेट खरीदना है तो उसके लिए बहुत कॉस्ट लगती थी, और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कैसे होता था। कंपनी में सपोज मुझे एक सर्वर खरीदना है, आप पेन भी नहीं खरीद सकते हो कंपनी में डायरेक्टली, उसके लिए आप लंबा प्रोसीजर होता है, आपको रिक्वायरमेंट आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट से लिख के लेनी पड़ती है, उसका टेंडर निकलता है, वो पास होता है, मैनेजर, उसके मैनेजर, फिर CTO, ये पूरा उन लोगों के पास से पूरा रिव्यू करके आएगा। उसके बाद इट विल बी, आपको उस वेंडर के पास जाओगे, वेंडर को ऑर्डर दोगे और वेंडर आपको 15-20 दिन बाद लाके देगा। इसमें कितना टाइम जाता था पता है, कि एक कंप्यूटर अगर आपको खरीदना है या फिर कोई सर्वर खरीदना है 2 to 3 मंथ्स कम से कम लगते थे, कोई भी एसेट खरीदना है तो ये लंबा प्रोसीजर था। ठीक है, देन चलो ठीक है, मैंने ऑर्डर दे दिया और उसके बाद आ गया मेरा सर्वर, तो आ गया, चलो मेरे पास आ गया। उसके बाद मुझे क्या क्या लगेगा, पावर सप्लाई लगेगा, उसको चलाने के लिए एक रूम लगेगी, जैसे मैंने आपको बताया, कूलिंग सिस्टम लगेगा प्रॉपर, क्योंकि हीट हमेशा जनरेट होते रहती है, और उसका मेंटेनेंस लगेगा, कुछ डाउन हो गया क्या हमेशा मुझे चेक करना पड़ेगा,
एक आदमी वहां पे मुझे हमेशा रखना पड़ेगा कि वो सर्वर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मॉनिटर करो भाई, क्योंकि कुछ डाउन हो गया तो उसके बाद में बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है। आपको पता है SLA साइन किया जाता है कंपनी के पास कि अगर मेरी वेबसाइट डाउन होती है सपोज 2 सेकेंड्स के लिए, तो ATS मुझे कितना पे करेगा वो 2 सेकेंड के लिए, उसको होता है SLA। इसलिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट के लिए भी डाउन हो जाए, आपको करोड़ में पे करना पड़ता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे वेबसाइट न डाउन हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक आदमी बिठाना पड़ेगा मॉनिटर करने के लिए, सो मुझे मैन पावर भी लगेगी। अब बहुत सिंपल सिंपल चीजें, आप थोड़ा मतलब सोच के देखो कि ये चीजें तो बहुत सिंपल है, बट ये तो लगती है ना भाई, इसकी तो कॉस्ट है, मॉनिटरिंग लगेगा। ठीक है, अब चलो मैन पावर है, मतलब मैंने एक आदमी को बिठा दिया तो हो गया नहीं, मुझे कैमरेज लगाने पड़ेंगे और वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द मॉनिटरिंग विल बी रिक्वायर्ड। अब मुझे उसको लिए रेंट आउट करना पड़ेगा, कोई जगह तो ऐसे देगा नहीं। ठीक है, सर्वर्स रखने के लिए सिक्योरिटी लगेगी, वो जगह मुझे रेंट आउट करनी पड़ेगी, और वो भी काफी लॉन्ग समय तक, क्योंकि मैं सर्वर ऐसे उठा के कहीं पे तो भी शिफ्ट नहीं कर सकती। एटलीस्ट 10, 15, 20 ईयर्स के लिए मुझे वो खरीदनी पड़ेगी या फिर रेंट आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी इश्यूज इन द स्केलिंग ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइड्स। ये इतना, अब अगर आप लिंक्डइन पे वगैरह हो तो आप थोड़ा सर्च करो कि स्केलिंग क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जस्ट मैच हुआ था अपना, ठीक है, फाइन अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कैन एनीवन टेल मी कि जो इस पे था जियो स्टार पे मैक्सिमम व्यूअर्स कितने रीच हुए थे, किसी ने ऑब्जर्व किया? एनी वन ऑफ यू? जो मैच देख रहे थे व्यूअर्स गए थे 51 करोड़ तक। कैन यू इमेजिन 51 करोड़? और हमारा 10th का रिजल्ट अगर हम देखने जाए तो सिर्फ कुछ लैक्स में हमारा वेबसाइट डाउन हो जाता था। करोड़ कहा और लैक्स कहा, इसके बिहाइंड पूरा है डेवऑप्स, AWS डेवऑप्स। ठीक है, उसकी वजह से 51 करोड़ साइमल्टेनियसली सभी के सभी प्लेयर्स अच्छे से मैच देख पा रहे थे। सो दैट इज द मैजिक ऑफ द AWS डेवऑप्स। उसके पीछे का कंसेप्ट है स्केलिंग। अभी जो एक सर्विस मैंने आपको बताई थी AWS की, वो है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, लोड बैलेंसिंग की वजह से हम हमारा कितने भी यूजर्स आ जाए, हम हमारा एप्लीकेशन डाउन नहीं होने देते। कितने भी यूजर्स साइमल्टेनियसली बहुत अच्छे से देख पाते हैं, हम वो सर्विस यूज करते हैं उसकी वजह से। दैट इज नथिंग बट द स्केलिंग। स्केलिंग मतलब क्या, सिंपल, कि आपको डिसाइड नहीं करना है पहले ही कि मेरे यूजर्स 10 लाख होंगे। आप मुझे बताओ, कोई आदमी कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपके 10 लाख से यूजर्स होंगे? नहीं ना, ये कितना भी बढ़ सकता है यार, दैट इज द डिमांड, ये हमारी आज की डिमांड है। और वैसा भी नहीं है कि वो 10 लाख से ज्यादा यूजर्स हमेशा रहेंगे, नहीं, वो सिर्फ एक पिक पॉइंट था कि उस मैच के लिए उतने यूजर्स थे, सिर्फ उतने दिन के लिए थे, बाकी टाइम पे इतने यूजर्स रहते नहीं है। तो फिर एक एग्जाम, मुझे मेरा सिस्टम सिंपली मैं अगर डेवलप कर रही हूँ 10 लाख पीपल के लिए, जो भी है मैंने खरीद लिया, आपको लोड बैलेंसिंग वगैरह छोड़ दो, अभी कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ इतना समझो कि मैंने सिस्टम मेरा जो डेवलप किया वो सिर्फ 10 लाख पीपल के लिए किया था, मैंने खरीदा, सब सब किया। बट क्या हो गया, उस दिन मेरे यूजर्स तो बढ़ गए 10 लाख से ज्यादा, वो हो गए सपोज 5 करोड़, तो मेरा सिस्टम तो क्रैश हो जाएगा। चलो ठीक है, उस पर मैं क्या करूंगी, मैं 5 करोड़ का सिस्टम डिजाइन करती हूँ। अरे पर मेरी कॉस्ट वेस्ट होगी ना, बाकी दिन तो इतने यूजर्स आते नहीं है, फिर तो मेरी कॉस्ट वेस्ट होगी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ AWS। आपके जैसे यूजर्स बढ़ेंगे, आप सिर्फ AWS को एक रिक्वेस्ट डालते हो, एक बटन क्लिक करते हो, और आपके यूजर्स, यू कैन जस्ट स्केल इट टू वॉट एवर एक्सटेंड यू वांट। सिर्फ आप उतने ही चीजों के लिए आप पे करते हो, उतने एक दिन के लिए आप AWS को पे करते हो। ठीक है, दैट इज द स्केलिंग। सो दिस वाज द इश्यूज। स्केलिंग में बहुत इश्यूज आता था, हम पहले ही नहीं प्रेडिक्ट कर पाते कि कितने यूजर्स आएंगे, कितने कम आएंगे। अगर ज्यादा के लिए डेवलप किया तो मेरा कॉस्ट वेस्ट जाएगा, कम के लिए किया तो मेरे हैंडल नहीं होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी। एंड द लास्ट वन इज द डिजास्टर इशू। आपको अगर पता याद होगा, 1992 में मुंबई रेन्स हुआ था। ठीक है, वहां के बैंक के जो सर्वर्स थे उनका बैकअप नहीं था। सो इतना ह्यूज इशू हुआ था, तब हमें समझ में आएगा कि बैकअप का इशू क्या।
कितना इम्पोर्टेंस है। आप इमेजिन करो, बैंक का अगर उस दिन बैकअप नहीं रहता था तो पूरा डेटा लॉस हो जाता था। एक सर्वर था कि जिसका जो जॉइंट हो गया था बैंगलोर को, वहां पे उनका बैकअप मिल गया था। सो ये एक इशू था कि डिजास्टर अगर आ गया किसी एरियाज में तो सब बैकअप कैसे लेंगे सर्वर्स का, सर्वर्स तो पूरे डूब जाएंगे वहां के। सो दैट वाज आल्सो द इशू। ठीक है, ये सब इश्यूज थे ट्रेडिशनल हमारे आईटी इंडस्ट्री में जब क्लाउड नहीं था। तो क्लाउड आने के बाद हमने ये सब रिजॉल्व किए। ठीक है, अभी आपको और कंसेप्ट बताने के लिए, ठीक है, आप इस क्लास के बाद एटलीस्ट आपको क्लाउड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एप्लीकेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, डेटाबेस क्या होता है ये आपको पता, एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अभी बताती हूँ। AWS एक ऐसा स्टोरेज हमने बनाया है, मतलब AWS हमें जैसे एक फिजिकल सर्वर हमने बनाया छोटा सा हमारे कंपनी के लिए, AWS ने कहीं तो भी उनके डेटा सेंटर्स खोल के रखे हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज अलोकेट करके रखी है, उनके फिजिकल सर्वर्स खुद के हैं और मुझे उसमें से कुछ यूज करना है तो इस AWS में से मैं छोटी सी कोई जगह अलोकेट कर लेती हूँ, उनको रिक्वेस्ट डालती हूँ कि मुझे इतना इतना यूज करना है, तो मुझे इतने बड़े क्लाउड में से वो एक छोटा सा पोर्शन मुझे यूज करने के लिए देता है, रेंट आउट करता है। ठीक है, सपोज मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे सपोज 10 MB की जगह पे मेरे लिए अलोकेट होगी। ये कितना बड़ा है ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। इन्होंने खुद के बहुत बड़े बड़े सर्वर्स बना के रखे। हमारा अकाउंट ऑलरेडी रहता है, हम वहां से रिक्वेस्ट डालते हैं, मेरे लिए एक जगह अलोकेट हो जाती है। सपोज मैंने EC2 बना लिया, एक PC बना लिया यहाँ पे, मैंने मेरा काम कर दिया, 2 दिन का मेरा काम था। ठीक है, उसके बाद मैंने वो रिलीज कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हो गया रिलीज, सिर्फ 2 दिन के लिए मुझे उसको पे करना है। ठीक है, इफ आई एम इन अ कॉर्पोरेट थिंग और मुझे उसका बहुत ज्यादा स्केलिंग में चाहिए तब मुझे पे करना पड़ेगा। फ्री अकाउंट में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, एक छोटी सी जगह मुझे अलोकेट कर देते हैं, हमारा काम करो, हो गया, टर्मिनेट कर दो, सिंपल है। सो क्लाउड कंसेप्ट ये है कि AWS का, Amazon का खुद का बहुत बड़ा डेटा सेंटर्स है, बहुत बड़ी मेमोरी उन्होंने अलोकेट करके रखी है, उनमें से वी आर गेटिंग अ वेरी शॉर्ट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे क्या कर रहे हो, रेंट आउट कर रहे हो। ठीक है, कैसे करोगे, अकाउंट बनाते हो, ऑलरेडी आपका अकाउंट होता है, आप कुछ टैब्स क्लिक करते हो, मतलब आपको एक छोटी सी जगह अलोकेट होती है, कुछ सर्विसेज यूज कर ली, काम हो गया, रिलीज कर दिया, डिलीट कर दिया, खत्म। ना आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, ना आपको किसी का अप्रूवल चाहिए CTO से हार्डवेयर का, आपको जो सर्विस चाहिए, कोई हार्डवेयर खरीदना नहीं, कोई कूलिंग सिस्टम नहीं, मैन पावर नहीं, कुछ भी नहीं लगता है, सिंपल, इट इज सो सिंपल। ठीक है, अगर आप एनालॉजी के हिसाब से देखा जाए, एनालॉजी मतलब क्या, मतलब किसी के साथ कंपेयर करके पढ़ाई करना, हमेशा पढ़ाई करते टाइम किसी कंसेप्ट समझते हैं, कंपेयर करके पढ़ाई करते जाओ, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ बुक कोई रीड करनी है, आपके जो एक पसंद है आपको कोई बुक रीड करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, करेक्ट। एक तो आप खरीद लोगे डायरेक्टली, या फिर आप कुछ दिनों के लिए बोरो करोगे किसी से रीड करके, सो रिटर्न कर दोगे, करेक्ट, एम आई करेक्ट? एवरीवन देयर? Yes. Yes, ओके yes. Yes. ओके, समझ में आ रहा है, बोर हो रहा है, नींद आ रही है गाइस? आ रहा है थोड़ा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, बस बी इन टच, आ जाएगा थोड़ा थोड़ा समझ में। फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम में, बट जैसे जैसे समझ में आएगा आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि मुझे अगर कोई बुक रीड करनी है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं खुद की बुक खरीद लूंगी या फिर मैं किसी से रेंट आउट कर लूंगी, या फिर और उसे रीड करने के बाद आई कैन गिव बैक टू हिम। सो दैट इज द सेम थिंग इन द AWS क्लाउड। एक तो मैं डायरेक्टली फिजिकल सर्वर खरीद लूं जो मैं ट्रेडिशनली चल रहा था, या फिर मैं लाइब्रेरी में जाऊंगी। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब मेरा हो गया AWS, मैं उसको बोलूंगी कि मुझे ना ये बुक चाहिए, उसकी कोई सर्विस है, मतलब ये बुक मुझे चाहिए, मेरा होने के बाद आई विल रिटर्न इट। मैंने लाइब्रेरी से बुक इशू किया, रीड किया,
5, 6 दिन, 7 दिन जो भी है रीड किया, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने उनको रिटर्न कर दिया। सिंपल, जितने दिन मैंने यूज किया उतने दिन के लिए ही मैंने AWS लाइब्रेरी को पे किया। और वही अगर मैं ट्रेडिशनली चलती थी तो मुझे क्या करना पड़ता, बुक खरीदो जिसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता, ठीक है, फिर वो रीड करो, उसके बाद मेरा यूज क्या है उसका, कुछ भी तो नहीं है। तो दैट इज द थिंग, आपको जो यूज करना है, जो सर्विस यूज करना है जितने दिन के लिए, यूज करो और उसको बंद कर दो, ठीक है। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आई एम गाइस जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स, ओके, जस्ट बी इन टच। हमने अब तक क्या क्या देखा कि हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कोर्स प्लान क्या होगा, ठीक है, और हमने स्टार्ट किया फिर क्लाउड कंसेप्ट क्या है, कि AWS के बारे में हम बात तो कर रहे हैं पर क्लाउड कंसेप्ट क्या है। सो इन सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू कि क्लाउड कंसेप्ट है, क्लाउड एक बहुत बड़ा डेटा है, डेटा सेंटर से, जहाँ पे मुझे मेमोरी हमारे बहुत AWS ने बना के रखी है, उनके खुद के डेटा सेंटर से। अगर मुझे यूज करना है तो मैं सिर्फ उनको एक रिक्वेस्ट डालती हूँ, क्लिक करती हूँ और उस क्लाउड का एक पोर्शन मेरे लिए अलोकेट हो जाता है, मैं वो यूज करती हूँ, जो भी सर्विसेज चाहिए सिर्फ उतने टाइम के लिए मैं उनको पे करती हूँ, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली नहीं होता था। ट्रेडिशनली बहुत लंबी प्रोसीजर्स थी। जो भी हम वर्चुअल सर्विस बना रहे, फिजिकल सर्विस और वर्चुअल सर्विस, AWS पे जो सर्वर्स हम बनाते हैं दोज आर द वर्चुअल सर्विस, फिजिकली जो हम सर्विस बनाते हैं जो ट्रेडिशनली चल रहा था दैट इज दो सर्विस, ठीक है। ट्रेडिशनल सर्विस में इशू बहुत था, हमें खुद मेंटेनेंस करना पड़ता था, जगह लगती थी, मॉनिटरिंग लगता था, एसी सिस्टम्स, पावर सप्लाई, ये सब इश्यूज थे, स्केलेबल नहीं थे, इतना इजीली स्केलेबल नहीं था। अगर मेरा सिस्टम कैपेबल था कि 10 लाख पीपल वो यूज कर सके एट अ टाइम, और मेरी डिमांड आ गई कि अभी 20 लाख को मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, 10 नहीं, अभी मेरा बहुत एप्लीकेशन बहुत सही चल रहा है, 20 लाख यूजर्स को यूज करना चाहिए, ये कोई एक क्लिक पे का काम नहीं है। फिर से आपके 1 या 1.5 महीना जाएगा कम से कम, मैं बता रही हूँ कम से कम, ठीक है। उसके बाद जाके वो स्केल होगा, तब तक तो उसके यूजर्स उसके एप्लीकेशन छोड़ के चले जाएंगे। बट ये नहीं होगा AWS केस में। AWS केस में चलो ठीक है 10 लाख नहीं, 20 का नहीं 30 का कर देते हैं। बस आप एक क्लिक करोगे, एक AWS कंसोल होता है जहाँ पे उस सर्विसेज पे क्लिक किया जाता है कि मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मुझे ये चाहिए, आप क्लिक कर दोगे, विद इन 5 to 8 मिनट्स आपका अपग्रेड हो जाता है, स्केलेबल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंस है क्लाउड का, इसीलिए क्लाउड इतना बूम में है। और दैट इज द रीजन गाइस, हमारे इंडिया में इतना ज्यादा IT सेक्टर बूम हुआ है, ठीक है। जब से क्लाउड कंसेप्ट आया है छोटी छोटी कंपनीज बनी है, क्योंकि उनको फिजिकली कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है, कोई भी हार्डवेयर खरीदना नहीं पड़ता है, उनके पास सिर्फ AWS क्लाउड का एक सपोज उन्होंने अकाउंट बना दिया कंपनी का, वो वहां पे पूरा उनका कंपनी चला देंगे, पूरे सर्वर्स वहां पे चला देते। दैट इज द थिंग कि इसीलिए हमारा IT सेक्टर इतना बूम में आ गया, छोटे छोटे कंपनीज बन गए, क्योंकि पहले सबके पास इतना ज्यादा फंड भी नहीं होता था कि वो फिजिकल सर्वर्स पे इतना स्पेंड करे। अभी सिर्फ डेवलपर्स के लिए आपको लैपटॉप देना पड़ता है, दैट्स इट, बाकी तो क्लाउड पे पूरा हो जाता है। इसीलिए तो इतना सारे IT कंपनीज बनी है, इसलिए तो चल रहा है। और ये क्लाउड ऐसी चीज है, ये कभी आपको मार्केट डाउन नहीं मिलेगा, इसमें नई नई चीजें आ रही है। क्लाउड डेटा है, डेटा क्लाउड है, यही फ्यूचर है, इसलिए वो बूम में चल रहा है इतना, ठीक है। अभी ये तो पूरा रिवाइज हो गया जो हमने अब तक देखा। मैंने आपको एक 3 टायर आर्किटेक्चर भी बताया है कि कोई क्लाइंट, IT इंडस्ट्री में क्लाइंट मतलब कौन होता है। क्लाइंट मतलब हर वो इंसान, वो हर वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, स्कूल, हुएवर जिनको एक एप्लीकेशन डेवलप करके चाहिए, वो अपना क्लाइंट हो गया, उनको हमें एप्लीकेशन डेवलप करके देना है, ठीक है। आइदर इट विल बी अ मोबाइल बेस्ड और वेब एप्लीकेशन बेस्ड, जो भी है, बट ही विल बी अवर क्लाइंट, वो हमारे क्लाइंट होता है। और उसमें हमने 3 टायर आर्किटेक्चर देखा। फ्रंट एंड जो हमें आंखों से दिखता है, जैसे फेसबुक पे आपको जो भी दिख रहा है पूरा, दैट इज नथिंग बट द फ्रंट एंड। उसके पीछे जो लॉजिक बन रहा है, एपीआईज हिट हो रही है, दैट इज द बैक एंड। और डेटाबेस में जहां हमारा डेटा स्टोर होता है, हर एक यूजर की कुछ इमेजेस है कहीं पे तो भी स्टोर होती है, सो दैट इज नथिंग बट द डेटाबेस। सो दिस इज द 3 टायर आर्किटेक्चर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, पर ये कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो आपका स्क्रैच से स्टार्ट नहीं हो रहा है,
तो आपको अभी ये चीजें भी क्लियर हो गई है। सो अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, चलो ठीक है, एक 3 टायर आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया। अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बेसिकली इतनी सारी, ये एक साइकिल बोला जाता है इसको, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अगर आप पूछोगे मुझे कि मैम या फिर रोहिणी, हम तो AWS DevOps देख रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आप मुझे बताओ, आप कल अगर जॉब करोगे IT इंडस्ट्री में और आपको पता नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है, उसके क्या क्या फेजेस है, ये आपको अगर पता नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या है? ये पूरा स्क्रैच से चीजें, हर एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर वेरी वेल कि हाँ, मुझे पता है सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, मुझे पता है क्लाउड कंसेप्ट क्या होता है, मुझे पता है कि कौन सा मॉडल यूज, अजाइल मेथोडोलॉजीज क्या है। ये पूरा, ये सब चीजें जो है अभी IT इंडस्ट्री में फॉलो की जाती है हर एक कंपनी में। ठीक है, मोर और लेस थोड़ा बहुत इधर उधर, पर ये कंसेप्ट ही होती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी SDLC क्या है? SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैं आपको सिंपल एग्जांपल जो हमारे फेसबुक का चल रहा था वही बता रही हूँ कि क्लाइंट आ गया और उसने बता दिया कि मुझे लॉगिन पेज चाहिए जिसमें यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए और वहां पे उसका फोटो भी दिखना चाहिए। तो फिर UX डिजाइनर्स होते हैं और बिजनेस एनालिस्ट होता है। बिजनेस एनालिस्ट मतलब जो रिक्वायरमेंट लेता है क्लाइंट से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट पूरी रिक्वायरमेंट लेता है, ठीक है, प्लानिंग की जाती है कि हमारी कब मीटिंग होगी क्लाइंट के साथ, इस मीटिंग में हमारा एजेंडा क्या होगा, ये पूरा लिखा जाता है, बिजनेस एनालिस्ट पूरा देखता है। फिर मीटिंग में पूरे उसके रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर नोट डाउन की जाती है। ठीक है, जो कुछ भी एक एक वर्ड जो क्लाइंट बोलता है पूरा लिखा जाता है, उसके दिमाग में क्या है, क्योंकि क्लाइंट से पैसा आने वाला है तो ही शुड बी सेटिस्फाइड। पूरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी जाती है रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, चलो रिक्वायरमेंट्स में आ गई, मैंने तो बता दिया ATS को कि मुझे लॉगिन पेज चाहिए, वहां पे एक फोटो भी लगना चाहिए यूजर का, यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, अंदर जाने के बाद सो या फिर इतने दिन के लिए वो डेटा रहना चाहिए। जैसे अभी हमारी मेमोरी जो है फेसबुक के लिए, वो अभी कितने भी साल रह सकती है, बट नहीं, मेरा वैसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए कि वो सिर्फ 3 साल तक रहे। ये एक मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी। ये पूरा नोट डाउन किया जाता है प्रॉपरली। यू कैंट इमेजिन गाइस कि कितना डिटेल में माइन्यूट रिक्वायरमेंट्स लिया जाता है, एक एक वर्ड क्लाइंट के मुंह से जो निकलता है पूरा नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, देन अभी चलो रिक्वायरमेंट्स मेरी क्लियर है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल यहाँ पे खत्म हो गया। उसने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन किया, रिक्वायरमेंट्स ले ली, वो पूरा वो उसको दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे रोल आता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स का, जो सीनियर्स होते हैं बहुत ज्यादा, 15-20 साल का, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनका अच्छा कमांड होता है, वो लोग फिर बैठते हैं और उसका जो हमारा सिस्टम है, मतलब क्या, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, उसका पूरा डिजाइनिंग किया जाता है। मतलब क्या, कि फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, बैक एंड में कौन सी यूज की जाएगी, ठीक है, डेटाबेस हम कौन सा यूज करना चाहिए, AWS में से हमें क्या क्या चाहिए, ये पूरी चीजें यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है। लो लेवल डिजाइनिंग होता है, इट इज कॉल्ड एज लो लेवल डिजाइनिंग। एकदम माइन्यूट माइन्यूट डिजाइनिंग होता है, पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। अभी चलो सब डिसाइड हो गया, हमारी टेक्नोलॉजी है HTML और बैकएंड में हो गया सपोज नेक्स्ट.js, ठीक है, और डेटाबेस हमारा RDS है। ये सब डिसाइड हो गया, सिर्फ इतनी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन की जाता है। देन स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमें तो सिर्फ कोडिंग ही पता है, कोडिंग करते, उसके पहले की ये चीजें होती है। फिर दिया जाता है फ्रंट एंड को स्टार्ट, उनका फ्रंट एंड, बैक एंड को बैक एंड, डेटाबेस का डेटाबेस, और डेवऑप्स का भी टास्क यही पे स्टार्ट होता है। डेवऑप्स स्टार्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसेप्ट क्या है समझो, जहां पे भी हमारा एप्लीकेशन रखा जाता है सर्वर से, या फिर कुछ भी हम जिस पे हमारा एप्लीकेशन लोड करते हैं, दैट इज नथिंग बट द इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपली हमारे अगर कॉमनली देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई बिल्डिंग, हमारा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा कॉलेज चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बिल्डिंग वगैरह जो होता है। तो सिंपली हमारा भी ऐसा ही है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कहीं पे तो भी रखने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली बनाया जाता है।
That infrastructure, it is developed on the AWS cloud by the DevOps engineer by using the Terraform. ठीक है, either manually. अब सुनो इस सेंटेंस का मतलब क्या है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है ये एप्लीकेशन रखने के लिए, ये हम क्लाउड पे बनाते हैं। एक तो तुम मैन्युअली बनाओगे या फिर आप टेराफॉर्म टूल यूज कर सकते हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। वो किया जाता है डेवऑप्स इंजीनियर, AWS डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ से। ठीक है, देन फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। चलो ठीक है, मैंने एप्लीकेशन तो बना दिया, मेरा फेसबुक एक अच्छे से चल गया, फ्रंट एंड बन गया, बैक एंड बन गया, डेटाबेस उनको अच्छे से कनेक्ट कर दिया। अभी उसका होता है टेस्टिंग। अगर मैंने टेस्टिंग ही नहीं किया और कहाँ पे वो फेल हो रहा है मुझे यूजर से पता चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा फेल्यूर है। इसलिए जितना भी पोर्शन आप डेवलप करते हो उसका अच्छे से टेस्टिंग किया जाता है। फिर टेस्ट तो हो गया, और फिर ये हर एक स्टेज पे क्लाइंट को दिखाया जाता है, इज इट ओके, आर यू ओके, सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड। फिर वो फीडबैक देता है। जब तक वो ओके नहीं बोलेगा हम आगे कुछ काम नहीं करते। चलो यहाँ तक उसने बोला कि यस आई एम डन, आई एम सेटिस्फाइड। फिर वो डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या पता है गाइस? हम वो कोड उठाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाल देते हैं, दैट इज नथिंग बट द डिप्लॉयमेंट। और यूजर्स उसे यूज करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर द डिप्लॉयमेंट। ये डिप्लॉयमेंट चीज ऐसी होती है डेवऑप्स के लिए रोज की चीज होती है कि एप्लीकेशन डिप्लॉय किया का कितने डिप्लॉयमेंट्स किए। सो दैट इज द डिप्लॉयमेंट टर्म। जो भी हमने डेवलप किया है कोड वो उठा के हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालते हैं। अब उठा के मतलब है, मेरी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, उसके लिए CI/CD पाइपलाइंस होती है, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट्स। उस पाइपलाइन से वो कोड जो हमने डेवलप किया है, जो टेस्ट हुआ है, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता है एंड यूजर्स यूज इट। और यहाँ पे अपना रोल खत्म होता है क्या? नहीं, उसके बाद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, अपग्रेड्स आते हैं। चलो ठीक है, इतना टेस्ट वेस्ट करने के बाद भी समझ में आ गया कि कुछ चीजें इश्यूज दे रही है, तो चलो चेंज इट, पैचिंग किया जाता है। ठीक है, अपग्रेड्स किए जाते हैं, उसको मेंटेन किया जाता है। और ये उसके भी फिर SLS कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह रहते हैं, बट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वो भी अपनी जगह पे आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल साइकिल कि एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज नथिंग बट द SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्लानिंग, requirement, designing, software development, testing, deployment, and the maintenance. Okay, now I told you the very best example ki how applications were developed before the cloud computing. I think there is no need to repeat those things, but I will just give you one sentence कि पहले कैसे होता था। बिजनेस आइडिया रहती थी, फिजिकल सर्वर्स खरीदने पड़ते थे। ठीक है, कुछ वीक्स लगते थे उसके लिए। फिर डेटा सेंटर सेट करो जहाँ पे हमें सर्वर्स रख सकते हैं, वहां पे प्रॉपर सिस्टम्स बनाओ। फिर वो सर्वर जो आ गया है उस पे पूरे आपके OS या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आपको लगते हैं पूरे इंस्टॉल करो, सिक्योरिटी उस पे इंस्टॉल करो। ठीक है, पूरा मैनुअल सेटअप, इसमें भी टाइम जाता था। फिर उसके बाद वहां पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करो और उसको अपग्रेड करो। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी मैंने आपको बताया कि मेरा बहुत सारा मैन पावर जाता था। ठीक है, वो स्केलेबल्स नहीं थे, मुझे फिजिकल हार्डवेयर खरीदना है तो बहुत सारी प्राइस लगती थी। ठीक है, और हर एक चीज खरीदने के लिए एक लंबी लाइफ साइकिल होती है, इसका अप्रूवल उसका अप्रूवल, फिर वेंडर के पास जाओ फिर खरीदो, उसके लिए जगह लगती है प्रॉपर। ये सब चीजें होती थी क्लाउड के पहले। और ट्रेडिशनल जो मैंने वही बताया कि बिफोर कैसे होता था, सेम थिंग इज देयर, नथिंग एल्स। अभी क्लाउड के बाद क्या हुआ? क्लाउड के बाद सिंपली क्या क्या होगा? बिजनेस आइडिया तो है, क्लाइंट ने आपको दे दिया, आपने डिजाइन भी कर लिया, आर्किटेक्ट ने डिजाइनिंग कर दिया। फिर आप क्या करोगे? आपकी कंपनी आपको AWS पे एक अकाउंट बनाती है। ठीक है, वो कॉर्पोरेट अकाउंट होता है, वो हमारे पर्सनल यूज का नहीं, उसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कॉर्पोरेट यूज, क्योंकि कुछ डिस्काउंट्स होते हैं, क्योंकि उसकी चार्जेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं। हमारे लिए नहीं, मतलब पर्सनल यूज के लिए AWS ही ऐसा क्लाउड है जो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी फ्री सर्विसेज देता है। ठीक है,
कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट आपकी कंपनी एक अकाउंट बनवाएगी सिंपल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, फिर आप उसमें रिसोर्सेज जो चाहिए वो रिसोर्सेज वहां पे बनाओगे। रिसोर्सेज मतलब क्या, सर्वर, सिंपल अभी फिलहाल आप ध्यान में रखो कि आप सर्वर्स वहां पे बनाओगे। कैसे बनाओगे, क्लिक करते हो आप बस टैब पे 1 2 3 4 आपका सर्वर अप हो जाता है, दैट्स इट। वो होने के बाद आपको ऑटो स्किलिंग भी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, मॉनिटरिंग मिलती है, और आपका जो एप्लीकेशन है ग्लोबल एक्सेसिबल हो जाता है। इतना सिंपल है। कितनी सारी चीजें हमने एलिमिनेट कर दी। दैट इज द रीजन कि अभी आईटी क्लाउड पे जा रही है पूरी की पूरी। 80 to 90% आईटी इंडस्ट्री इट इज शिफ्टेड टू द क्लाउड ओनली। वाज वेरी नेग्लिजिबल, जो बहुत पुराने और वो भी अभी डेटा माइग्रेट कर रहे हैं क्लाउड पे। ठीक है, दैट इज द रीजन गाइस कि अभी पूरी आईटी इंडस्ट्री क्लाउड पे शिफ्ट होगी और क्लाउड हैज द बेस्ट फ्यूचर। नाउ वही चीजें मैंने आपको 5 मिनट पे, जहाँ पे वीक्स या फिर मंथ्स लगते थे, अभी कितना हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट में आपका सब कुछ रेडी हो जाता है। क्या क्या चीजें हैं जो क्लाउड इतना बूम में आ गया। ऑन डिमांड डिलीवरी मतलब क्या, मुझे चाहिए लोड बैलेंसर कि जैसे मैच था मेरा, वहां पे मेरे यूजर्स 10 लाख नहीं 51 ने 52 करोड़ हैंडल करने चाहिए। ओके, एडब्ल्यूएस सेड ओके, मैंने सिर्फ कुछ क्लिक्स किया और मेरे यूजर्स हैंडल हो गए। लोड बैलेंसर लगा दिया, उस उतने रिक्वायरमेंट का मेरे हैंडल्स हो गए। ठीक है, पे एज यू गो, मुझे सिर्फ उतने ही चीज के लिए पे करना है जितना मैंने यूज किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे हार्डवेयर मैंने खरीद लिया 5 करोड़ का यूजर्स का और बाकी दिन के लिए वो वेस्ट चला गया, नहीं, मैं जितना यूज करूंगी सिर्फ उतने लिए पे करूंगी। ठीक है, मुझे इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। EC2 जिसकी मैं एक सर्वर की बात कर रही हूँ, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, अभी आप कोई लैपटॉप सब तो यूज करते हैं, ठीक है, लैपटॉप को आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते हो, विंडोज डालते हो, जिनके पास मैक होगा उनका मैक ओएस होता है। ये छोड़ के तो आप कोई फिर से चेंज कर, अगर मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा डाल के दे, कितनी लंबी प्रोसीजर है आपको पता है ना। आपको एक तो खुद डालते हो, आप पूरा अनइंस्टॉल करते हैं, या फिर वो शॉप में जाके दूसरा वाला डाल के लेते हो आईटी वाले बंदे से। यहाँ पे क्या होता है पता है आपको, EC2 में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिजिकली आपको लिनक्स मिलता है, मैक ओएस मिलता है, विंडोज मिलता है, रेड लिनक्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने सारे। आपको सिर्फ क्लिक करना है कि ये क्लिक करके मेरा ओएस आ जाएगा उस EC2 पे। ठीक है, ये प्रेफरेंस में जो चाहिए मैं ले सकती हूँ। इंस्टेंट है, 5 to 6 मिनट्स लगते हैं आप आने के लिए। ग्लोबल है, कोई भी कहीं पे भी पूरे ऑन द अर्थ आप AWS के सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए में आप एक्सेस करते हो या फिर सिर्फ इंडिया में, नहीं, आप कहीं पे भी हो, यू कैन यूज इट ग्लोबली। ठीक है, 1 क्लिक अवे है, सिर्फ एक क्लिक करते जाओ और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अप हो जाता है। एंड गाइस द मेन थिंग इज आप ऑलरेडी क्लाउड यूज करते हो, सिर्फ आपको पता नहीं है। जीमेल ड्राइव तो पता है ना सबको, या फिर जीमेल 15 GB का डेटा रहता है आपको, 15 GB, वो कहाँ से आता है, इट इज नथिंग बट द गूगल क्लाउड गाइज। Already you are using it, just you don't know that you are using the cloud. It is the Gmail, Hotstar, Netflix, Dropbox, ये जो भी चीजें हैं आपको सिंपल है। ड्राइव या फिर आपका गूगल, ये आपका GCP मतलब वो उनका क्लाउड है गूगल का। ठीक है, वो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, सिर्फ आपको पता नहीं कि आप क्लाउड यूज कर रहे हो। उनके खुद के डेटा सेंटर्स है, उसमें से कुछ मेमोरी आपको अलोकेट करके दी। मैंने जो आपको लैंग्वेज में समझाया वही चीजें, आपको बहुत सारे मेमोरी में से 15 GB डेटा उन्होंने अलोकेट कर दिया आपके यूजर नेम को। दैट इज द थिंग। नाउ ओके फाइन, नाउ ये था क्लाउड कंसेप्ट। यहाँ तक सबको कुछ डाउट है, थोड़ा बहुत भी कुछ दिमाग में है, या फिर कोई चीज में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। हेलो, बेसिक आइडिया तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बाद में समझ में आएगा।
श्योर बट थोड़ा बहुत समझ में आ गया, चलो 110% तो समझ में आया। थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। ठीक है, चलो सिंपली मैं आप बताती हूँ। आप जीमेल तो यूज करते हो ना सभी लोग? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें देखो आपके 15 GB डेटा आपको अलोकेट होता है, 15 GB मेमोरी आपकी होती है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि ये मेमोरी कहाँ से आती है? ये तो कहीं पे तो स्टोर होता होगा ना, ये डेटा आपके ईमेल्स कहीं तो स्टोर होते होंगे। वो आपके स्टोर होते हैं क्लाउड पे। वो क्लाउड होता है गूगल का। ठीक है, वो अभी हम आगे देखते हैं, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, अभी ठीक है, अभी क्लाउड्स कौन से हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? AWS, अजूर और GCP। ये तीनों एक दूसरे के अब सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, AWS मतलब अमेजोन का क्लाउड है, अजूर मतलब माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, एंड द GCP जैसे मैंने अभी आपको बोला ये गूगल का क्लाउड है। ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, दिस इज अजूर, इट इज बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एंड द AWS इट इज बाय द अमेजोन। ठीक है, सबसे पहले AWS क्या आया था, उसके बाद फिर ये दोनों आए थे। अभी भी सबसे ज्यादा, इफ आई से as of the fourth quarter of the 2024 the global cloud infrastructure, मतलब ये एक सर्वे है जिसके हिसाब से ये आपके नंबर्स है। AWS का मार्केट है, मतलब क्लाउड अगर देखा जाए कि क्लाउड का मार्केट किसने किसने ऑक्यूपाई किया है, 100% में से AWS का 31% सबसे ज्यादा, माइक्रोसॉफ्ट का 21% और GCP का 12%। और छोटे छोटे बाकी भी है बट दे आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन आई कैन से। अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल, IBM भी है बट ये बहुत छोटे छोटे निग्लिजिबल है। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड GCP। ठीक है, आप अगर इनके नंबर्स देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व, सबसे ज्यादा मार्केट है AWS का, एंड दैट इज द रीजन गाइस वी आर गोइंग फॉर द AWS। अगर आपको AWS क्लाउड अच्छे से पता है, इफ यू आर मास्टरिंग इट, आपका बहुत बड़ा जॉब मार्केट ओपन है। ठीक है, अजूर एंड GCP इज आल्सो गुड, बट ये आप सिर्फ रिसर्च थोड़ा देख लो कि मार्केट किसने सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, इनिशिएटर्स भी AWS थे और अभी भी उनका ही मार्केट चल रहा है, सबसे ज्यादा इनका है 31%। ठीक है, एंड रेवेन्यू की बात की जाए तो AWS का ही 28.8 बिलियंस, ये इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। सो आई कैन से द AWS इज स्टिल रूलिंग इन द क्लाउड। ठीक है, अगर क्लाउड पे रूलर बोला जाए तो अभी भी AWS ही है। That's why if you know the services, if you know the AWS cloud, then you have a best opportunities in the market. ठीक है, now टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कौन से होती है, ये आगे का कंसेप्ट है, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड होता है। पब्लिक मतलब क्या, पब्लिक क्लाउड एज द नेम सजेस्ट, ये कोई भी यूज कर सकता है, एनीवन, दैट इज द पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड, अगर मैं सोचूं कि ये प्राइवेट क्लाउड कहाँ पे यूज हो सकता है, सो एनीवन कैन रिलेट कि जहाँ पे मुझे ज्यादा सिक्योर डेटा सिक्योर करना है, कुछ सेंसिटिव डेटा है जब सिक्योर करना है, एट दैट टाइम आई विल यूज द प्राइवेट वन। करेक्ट, सो मेरा सेंसिटिव डेटा होता है सबसे ज्यादा पैसा, बैंक। करेक्ट, so in the banking applications the cloud is the private one, the cloud which is used in the banks, that is nothing but the private cloud। and the third one is the hybrid। हाइब्रिड मतलब इन दोनों का मिला के, पब्लिक प्लस प्राइवेट, दैट इज नथिंग बट द हाइब्रिड। सो वी आर गोइंग टू सी द जो हम यूज करते हैं दैट इज द पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड बैंक्स का खुद का बना के लिया जाता है, उनका खुद का क्लाउड होता है। ठीक है, क्योंकि उनको सेंसिटिव डेटा बाहर लीक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज रहती है, दैट इज द प्राइवेट क्लाउड। नाउ जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि AWS कुछ ऐसी सर्विसेज बता देता है, ऑलमोस्ट 200 प्लस सर्विसेज AWS क्लाउड फिलहाल दे रहा है। ठीक है, अगर मैं उनको कैटेगराइज करूँ तो ये इतनी कैटेगरीज है, कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, इन सब का हमें पूरे की पूरे नहीं पढ़नी है। जैसे IoT के लिए है, डेवलपर्स के लिए, ये हमारी जरूरत ही नहीं है। हाइब्रिड माइग्रेशन की अलग सर्विसेज है, मतलब आप कुछ भी बोलो IT में आपको क्या करना है, AWS सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
ठीक है, हमें काम पड़ता है कंप्यूटर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क, सिक्योरिटी, दैट्स इट। बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सर्विसेज हम देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल गुड टू गो फॉर द AWS DevOps। ठीक है ना, चलो ठीक है। रोहिणी, मैंने कंप्लीट तो कर दिया 4 मंथ्स का कोर्स, मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली, सेशंस अटेंड किए, मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए जैसे आपने बोला था, से आफ्टर 15 डेज। उसके बाद क्या? उसके बाद दिस इज द मार्केट विच इज ओपन फॉर यू। इतने सारे हैं जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, मैं बता रही हूँ, मुझ पे विश्वास मत रखना। naukri.com पे जाना है और सर्च करना है AWS क्लाउड, AWS क्लाउड, उसके लिए कितने जॉब्स ओपन है। ठीक है, वो पूरा आप खुद, ये आपका स्टडी है, नेक्स्ट सेशन के लिए जब आओगे तब आपको देखना है। और वन मोर थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व कि उनके जो डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें कौन से टूल्स होते हैं। जो कुछ भी हमने सिलेबस कवर किया है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है, अगर वो आपका अच्छे से हो जाता है तो यू आर गुड टू गो टू गिव द इंटरव्यूज। So these are the jobs which are, this market will be open for you guys. Just you have to give the interviews, crack the interviews and get the job. और जैसे भी मैंने कहा कि क्लाउड का फ्यूचर बहुत अच्छा है, रीजन भी मैंने आपको बताए हैं कि आईटी इंडस्ट्रीज भी इतनी ज्यादा हमारे इंडिया में क्यों बूम में आई है, उनको क्लाउड मिल गया है। सो छोटी छोटी कंपनीज है जो खुद का एप्लीकेशंस बना रही है, तो उनका डेवऑप्स इंजीनियर तो लगते हैं, AWS जो उनको क्लाउड हैंडल करने के लिए लगते ही है। तो जॉब बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा ओपन है, अच्छे से पढ़ाई करो, इंटरव्यूज दो, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सो at the okay, before that I will just show you in the detail what we are going to cover. ठीक है, so in detail I am showing you, this is our module 1। इसमें हम क्या कवर करने वाले, जैसे मैंने आपको बोला था, अजाइल वर्सेस वाटरफॉल मॉडल। ये क्या है? मॉडल मतलब अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वो कैसे, उसकी प्रोसीजर होती है गाइस। ओके, ऐसे नहीं कि बस उठा लिया फ्रंट एंड का डेवलप करना शुरू कर दो, नो, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होती है। वो प्रोसीजर इज नथिंग बट दीज मॉडल्स अजाइल एंड वाटरफॉल। ठीक है, तो अभी तो अजाइल ही चल रही है, बट आपको पता होना चाहिए। आप अगर जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहां पे लिखा होता है कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ द अजाइल टर्म्स, कैंडिडेट शुड वर्क ऑन द अजाइल मेथोडोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। ठीक है, हम सर्विसेज देखने वाले AWS की, ये जो मैंने बोला था। ठीक है, these are the services which are going to see। नेटवर्किंग जैसे मैंने आपको बोला था, OSI मॉडल क्या होता है, TCP IP, प्राइवेट IP, पब्लिक IP, these are the concepts of the basic networking। देन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हमें लगती है वो पूरी कमांड्स यहाँ पे कवर की जाती है। आपको जितनी इम्पोर्टेंट है पूरी की पूरी कमांड्स, इट विल बी ऑलमोस्ट 100 to 120 कमांड्स, आपको वो पूरी कवर की जाएगी। ठीक है, देन हाउ थिंग्स वर्क बिफोर द क्लाउड टेक्नोलॉजी, व्हाट इज ऑन प्रीमाइसेस, ऑन प्रीमाइसेस वर्सेस क्लाउड मतलब क्या होता है, पे एज यू गो मॉडल। ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब आप फ्रेशर्स करके आप जब इंटरव्यूज देते हो तो ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ऑन प्रीमाइस क्या होता है, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एज पे यू गो मॉडल क्या होता है। बहुत सिंपल है, जैसे अभी मैंने आपको मेरी लैंग्वेज में जैसे होगा मैंने आपको बताया, वैसे ही अगर मैं बताऊंगी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, बहुत इजी है। देन अभी यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर्विसेज कौन सी है। EC2 सर्विस जैसे मैंने आपको बोला था, देन AWS स्टोरेज, ठीक है, AWS VPC सर्विस देखने वाले हैं, लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग, जिसकी बात कर रही थी मैं इस मैच में अभी 51 करोड़ या 50 करोड़ जो यूजर्स हैंडल किए थे, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर। ओके, ये सर्विस की वजह से वो हैंडल हुआ था। देन राउट 53 और मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब ये भी सर्विस AWS देता है कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको अच्छे से मॉनिटर कर सके।
देन डेवऑप्स स्टार्ट होगा। डेवऑप्स मतलब क्या होता है गाइस, इस पे भी क्वेश्चंस। और व्हाट आई विल डू, जैसे हमारा सिलेबस आगे जाएगा, मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो रियल टाइम सिनेरियोस में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, आई विल टेल यू कि इस टॉपिक पे ये इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मैंने फेस किए हैं या फिर मेरे कलीग से मैंने जो इंटरेक्शन करने के बाद मुझे पता चला क्या क्या क्वेश्चंस है, वो मैंने नोट आउट करके रखे हैं और उस टॉपिक में मैं आपको बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो आपको आइडिया आ जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। ठीक है। देन गीटा मतलब इट इज द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये हम देखेंगे जहाँ पे कोड रखा जाता है। इसलिए मतलब फ्रंट एंड बैक एंड का जो कोड लिखते हैं वो गिट पे रखा जाता है, गिटहब पे। ठीक है। जेनकिंस एक टूल है CI/CD का। डॉकर मतलब कंटेनराइजेशन। एंसिबल टूल मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हम देखने वाले हैं। एंड गाइस इंपॉर्टेंट वन, द टेराफॉर्म, ये आपको आ रहा है मतलब बहुत कुछ आता है, ऐसे समझा जाता है। टेराफॉर्म मतलब ये कोडिंग लैंग्वेज है डेवऑप्स की, जो यूज करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर अप करते हो। ठीक है। इसके लिए कोडिंग वोडिंग नहीं लगता है, सुनो पहले दिमाग में डाल दो, इसको कोडिंग नहीं बोलते हैं। ये सिर्फ कुछ फॉर्मेट से जो यूज करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर अप करते हैं। ठीक है। देन कुबरनेटिस, ये वेरी डिमांडिंग टूल है कुबरनेटिस, जो सबसे लेटेस्ट में चल रहा है। ये आपको पता ही होना चाहिए, ये आपको, अगर आपको पता नहीं है तो आपको आउटडेटेड कहा जाता है कि आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है। एंड वी विल सी द प्रोजेक्ट्स एट द लास्ट। चलो अभी मुझे आपसे पूछना है, आप लोगों से एक डेमो देखना चाहोगे? अगर मैं कहूँ कि मुझे कंसोल पे मतलब एक पीसी बनाना है AWS क्लाउड पे, तो देखना है? आर यू इंटरेस्टेड? Yes, yes. Yes, ma'am. ओके। चलो ठीक है। एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? Yes, yes. ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इसमें लॉगिन करके रखा है, सिंपल। मतलब मेरे पास एक यूजर नेम था मैडम मेरा। ये Thank you. एजाइल वर्सेस वाटरफॉल यही ये पीपीटी दिख रहा है सामने। ओह नहीं, वेट वेट, पीपीटी ही दिख रहा है अभी भी? नहीं, स्क्रीन तो दिख रहा था। शायद नहीं आपका मैडम, हैंग मेरे हो को गया होगा। पीपीटी। एक काम करो, फिर से आप रिज्वाइन करो, शायद आपका ये हो गया, स्टक हो गया होगा। देख लेते हैं फिर से। हाँ एक बार रिज्वाइन करो, शायद दिख जाएगा। बाकी लोगों को तो स्क्रीन दिख रहा है AWS कंसोल? यस, दिख रहा है। करेक्ट। ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, अभी जिन्होंने बात की थी वो है अभी यहाँ पे बने हुए, या आपके लिए वेट करें 2 मिनट रिज्वाइन करने के लिए? आई थिंक ही इज रिज्वाइनिंग। ठीक है। चलो क्या करना है गाइज, मैंने सिंपल एक यूजर आईडी बनाया है, आपको अकाउंट बनाना है। सबसे पहली चीज, इफ यू आर गोइंग टू अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर, तो आपको एक टास्क है। सबसे पहले आपको AWS अकाउंट पे, AWS कंसोल पे अकाउंट बनाना है। क्या क्या लगेगा, एक ईमेल आईडी लगता है और आपको एक कार्ड लगता है। उससे पैसे कटते नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो। फ्री टायर वाला सिलेक्ट करना है, सिंपल, बाकी कुछ नहीं, पैसे नहीं लगेंगे। एक फ्री टायर वाला अकाउंट वहां पे मैं आपको एक, जब हमारा ग्रुप बन जाता है तो एक लिंक शेयर करूंगी, अकाउंट कैसे बनाना है। वो एक फ्री वाला अकाउंट बना के रखो। आपको क्लास अटेंड करना है नहीं करना है, इट इज योर डिसीजन, बट आई विल सजेस्ट करो ना करो, एक अकाउंट बना लो और प्रैक्टिस करते रहो। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको आ जाएगी, मजा आएगा। ठीक है। ये आपका टास्क है कि आपको आपका अकाउंट क्रिएट करके ही लेना है 2 या 3 दिन में। अकाउंट के लिए आपको ईमेल आईडी लगेगा, एक कार्ड लगेगा, कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ठीक है। और पैन कार्ड की डिटेल्स भी डालनी पड़ती है। अभी जस्ट उन्होंने AWS ने नया वाला फीचर डाला है कि आपको पैन कार्ड के भी डिटेल्स डालने पड़ते हैं। ठीक है। और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिटेल्स डालने हैं। फ्री टायर वाला अकाउंट सिलेक्ट करना है, 5 स्टेप होने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज माई अकाउंट ATS AWS, मैंने लॉग इन किया है। यहाँ से मैं लॉग आउट भी कर सकती हूँ।
ठीक है। सो पहले से दिखाओ या फिर यहाँ से साइन आउट करूं? स्टार्टिंग से मैडम। ठीक है, ठीक है, साइन आउट कर रही हूँ। यहाँ पे AWS कंसोल है, सिंपल, ठीक है। ये आपको एक लिंक में भेजी जाएगी। आप अगर AWS कंसोल लॉगिन भी डालोगे तो भी वो आ जाएगा, ठीक है। AWS कंसोल लॉगिन ये डालना है, इट विल बी ओपन हियर, ओके। इज इट क्लियर? मैंने गूगल पे सिर्फ AWS कंसोल लॉगिन डाला था और पहले ही लिंक मैंने ओपन की है। अभी यहाँ पे ये वाला बटन है, साइन इन टू द कंसोल, ठीक है। अभी मैंने मेरा यूजर आईडी पहले ही बना के रखा था, इसलिए मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगी विद द रूट यूजर, ठीक है। ये मेरा ईमेल आईडी है, मेरा साइन इन कर दिया। ये आपको आपका अकाउंट बना के रखना है, तब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा, ठीक है ना। ये MFA बोलते हैं कि मुझे मेरा कुछ चाहिए क्या अभी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको शुरू करना है क्या, वो मुझे पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ तक अभी सबको क्लियर है? मैंने सिर्फ ब्राउजर में डाला AWS कंसोल लॉगिन, पहली लिंक आई वहां पे ओपन किया। आपका अकाउंट पहले ही बना रहेगा तो आपके पास एक यूजर आईडी रहेगा, रूट यूजर, ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड रहेगा, वो आपको फिल करना है और लॉग इन करना है, ओके। टिल दिस इज इट ओके? यस। Yes. ओके, सो दिस इज द कंसोल गाइस। ये है AWS का क्लाउड, ठीक है। अपने लिए सिर्फ यही क्लाउड है, उसके बैक ऑफ क्या चल रहा है हमें नहीं पता, बट ये हमारे लिए क्लाउड है। जो मैं EC2 को बात कर रही थी, मुझे सर्वर बनाना है, एक पीसी बनाना है मेरे यूज के लिए, जैसे पीसी बोलते हैं ना हम, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पता है किसी को? हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, सबको पता है क्योंकि हम यूज करते हैं। वैसे ही एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलपर्स यूज करते हैं। डेवलपर्स विंडोज कभी नहीं यूज करेंगे, कभी नहीं। लिनक्स ही यूज किया जाता है आईटी, ठीक है, ध्यान में रखो। आईटी में लिनक्स ही यूज किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है, वैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैक का पता होगा आपको कि मैक का खुद का ओएस है, वैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे पीसी बनाना है या फिर खरीदना है, तो आपको क्या 30-40 हजार लगेंगे? आप जाओगे शॉप में, खरीदोगे, पैसे दोगे, वो आपके पास एक लैपटॉप होगा, फिर आप उस पर इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर, ओएस डालोगे और फिर उससे स्टार्ट करोगे, करेक्ट। अभी मैं देखो एक सर्वर बना रही हूँ, सिंपल एक पीसी बना रही हूँ, ये सर्विसेज है। यहाँ पे ये पूरी सर्विसेज है गाइस, जो आपका AWS आपको देता है। सी, दीज आर ऑल द सर्विसेज, मैंने जो आपको बोला था, इतनी सारी सर्विसेज आपको AWS प्रोवाइड करता है। हमें कुछ भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उसका एक पार्ट यूज करना है, ठीक है। दैट इज द EC2 वी आर गोइंग टू यूज। मैंने EC2 पे क्लिक किया, इंस्टेंस बोलते हैं क्लाउड के अगर टेक्नोलॉजीज में, इफ आई एम सेइंग, उस कंप्यूटर को, उस पीसी को इंस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगी, ठीक है, इसे कुछ ATS, ओके। मैंने आपको कहा था ड्यूरिंग द लेक्चर्स कि मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं कि मैं कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे इंस्टॉल करूं। आपके लैपटॉप के अगर आप बोल रहे हो कि मैंने विंडोज मुझे डालना है, तो आप वो उनको बोलते हो कि सॉफ्टवेयर डालते टाइम मुझे विंडोज 11 दो, 10 दो, जो भी है, एक बार कर दिया तो हो गया। मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है, मैं इसमें से कोई भी डाल सकती हूँ। ये जो पूरे है ना, डेबियन, सूस लिनक्स, रेड हैट, विंडोज, उबंटू, मैक ओएस, कोई भी मैं इसमें से यूज कर सकती हूँ। अभी मैं लिनक्स यूज करूंगी, ठीक है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने उसे सिलेक्ट किया,
ये आर्किटेक्चर है, देखो पूरा हार्डवेयर उसका वहां पे डिफाइंड है, ठीक है। इंस्टेंस टाइप मतलब मेरा हार्डवेयर जो मैं यूज कर रही हूँ उसके पीछे बिहाइंड कि कौन सा होना चाहिए, उसमें सीपीयूज कितने होने चाहिए। सीपीयू तो थोड़ा बहुत पता होगा सबको यार, हम लैपटॉप यूज करते हो तो ये 1 सीपीयू उसमें आ जाता है, 1 गीगाबाइट मेमोरी आती है, ठीक है। तो T2 माइक्रो, और यहाँ पे देखो फ्री टायर एलिजिबल, मतलब ये फ्री टायर में आता है, इसके लिए कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे इतने सारे जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नैनो तो उससे भी छोटा है, तो आई विल टेक द दिस वन जो भी है माइक्रो का। यहाँ पे आया फ्री टायर एलिजिबल। अभी की पेयर मतलब एक सिक्योरिटी फीचर है जो यूज किया जाता है उसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू पेयर करना है। ये आप जब प्रैक्टिकल्स करोगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं एटीएस सिलेक्ट कर रही हूँ। नेटवर्क सेटिंग्स, ये मुझे कहाँ पे रखना है, ठीक है, क्या क्या अलाउ करना है, ये चीजें टेक्निकल है, जब आप आगे जाओगे जब सीखोगे सर्विस तब आपको पता चलेगी। बट आई एम टेलिंग यू कि मुझे फ्यू क्लिक्स पे एक पीसी कैसे रेडी हो रहा है, ठीक है। हो गया और मैंने लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ द इंस्टेंस। अभी हम इंस्टेंस पे जाएंगे, नाम हमने एटीएस दिया था, करेक्ट। T2 माइक्रो सिलेक्ट किया था, और वो कहाँ पे उसका पब्लिक आईडी, ये सब आ गया, जो आपको चाहिए सब कुछ आ गया। मैंने की कौन सी यूज की थी वो भी आ गया। प्लेटफॉर्म मतलब मैंने कौन सी सिस्टम ओएस यूज की थी वो भी आ गया। एवरीथिंग आई गॉट इट देयर, और अभी वो इनिशियलाइज्ड हो रहा है। अभी मैं इस पे सिलेक्ट करूंगी, कनेक्ट कर रहा है, मुझे उसके अंदर जाना है, ठीक है। And it's here. I am inside that EC2 instance. हो गया, मैं उस सर्वर के अंदर हूँ, मुझे जो चाहिए उस लैपटॉप के अंदर, जैसे हम लिनक्स में चलाते हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कितना टाइम लगा गाइस? हार्डली 3 to 4 मिनट्स, उसके अंदर मेरा एक सर्वर हो गया रेडी, ठीक है। सो दिस वाज द फ्यू जस्ट अ स्मॉल डेमो फॉर द EC2 इंस्टेंस। ये इंस्टेंसेस है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब मेरा काम हो गया, ठीक है, हुआ तो नहीं बट से कि मेरा जो काम था मैंने उस पर कुछ कमांड चलाई, मेरा हो गया। अभी मुझे इसका काम नहीं है, तो आप इसे टर्मिनेट कर दो, हो गया आपका EC2 इंस्टेंस बंद भी हो गया, आपने डिस्ट्रॉय भी कर दिया उसका। दैट्स इट। So I'm just deleting it now because it is of no use for me. So I'm just terminating the instance. Successfully initiated termination off. That's it. So I just hope you enjoyed the session. Do you have any doubts? नो मैम, अभी तो नहीं, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ेंगे उस तरह से काफी डाउट रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहेंगे। और पहली चीज ये रखो, डेवऑप्स और AWS है, मतलब अपना पाला पड़ता है एरर से ही। एरर्स क्योंकि ये चीज ऐसी है, डिफाइन नहीं होती है जैसे डेवलपर्स की होती है ना कि उनको ये टास्क कंप्लीट करना है, ये ऐसा नहीं है। इसमें जितने ज्यादा एरर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ये चीज पहले दिमाग में डालो। आपने कितने सारे एरर्स आपके करियर में फेस किए हैं, वो आपको बनाता है कितने काबिल ऑफ AWS और डेवऑप्स हो। ये चीज पहले बिल्कुल डरना नहीं है, अगर आपको एरर्स आ रहे हैं मतलब आप सही तरीके से जा रहे हो। एरर्स पढ़ना है अच्छे से कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है। एरर पढ़ोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बिकॉज वी आर नॉट द ओनली वन हु आर फेसिंग। हर एक एरर का सॉल्यूशन रहता है, बट डेवऑप्स और AWS की पहचान ही वही है कि आपने कितने एरर्स हैंडल किए हैं। वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी, और आपको सैलरीज बहुत अच्छी है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग
अगर डेवलपर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो डेवऑप्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है AWS डेवऑप्स की, ठीक है। आपको एफर्ट्स लेने हैं अच्छे से। और वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू डू द सर्टिफिकेशन आल्सो, वी विल गाइड फॉर यू दैट, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेशन भी करना है तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। So, do you have any question or we should wrap it? अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। Okay, कोई बात नहीं। Guys, one more thing, either you are continuing with us or not, but बात करना सीखो, ठीक है। खुद को प्रेजेंट करना सीखो सबसे पहले। आप कहीं पे भी करियर में आपको कहीं पे आगे बढ़ना है, you should be able to present yourself। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। Either whether you are with us or with anyone else, आपको बोलना है तभी आपको हायर करेंगे। दिमाग, ये बात पहले दिमाग में बैठो। जो बोलता नहीं है उसे हायर भी नहीं कोई करता है, ठीक है। क्योंकि वो आगे वाले को पता ही नहीं चलता कि आपके दिमाग में क्या है। अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट टॉक, यू विल नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको कोई हायर नहीं करने वाला है। आप कोई भी सेक्टर में जाओ, आप टेलीकॉम में जाओ, IT में जाओ, टीचिंग फील्ड में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट टॉक, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। किसी से डरना नहीं है। Whatever you feel, you have to talk it. Okay? चलो, all the best, guys. I just hope you in the next session. Okay? Good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू ATS।